السلام علیکم ویورز معذرت یہ کچھ صحت کے ایشوز تھے اور کچھ نجی مصروفیات کی وجہ سے کافی دنوں بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. بہرحال اس کے لیے معذرت. اور ساتھ یہ ہے کہ کچھ حالات بھی ملکی حالات ایسے تھے کہ اگر ان کا بھی تجزیہ کرنا ذرا تھوڑا ٹائم لے گیا. تو اس وقت میں سیدھا پوائنٹ کی طرف آتا ہوں. جو اس وقت ملکی صورتحال ہے بیرونی لحاظ سے یا خارجہ امور پہ بیرونی دنیا میں اس وقت اگر غیرت کا اور ملک کی عزت کا جہاں تک معاملہ ہے اور اس کے لیے جو رخ متعین کیا جا رہا ہے وہ پچھلی آزادی کے 70-74 سال کو اگر دیکھا جائے تو اس وقت وہ ایک بہترین شکل میں ہے کہ ان قوتوں جس میں امریکہ اور مغرب سے کے اثر و رسوخ سے نکل کر ایک آزاد اور خود مختار خارجہ پالیسی کو رکھتے ہوئے ملک آگے بڑھ رہا ہے اور جس میں معاشی معاملات کا بھی حل ہے اور بہتر مستقبل کی امید بھی ہے. وہیں پر اس وقت جو داخلی معاملات ہیں موجودہ داخلی معاملات اگر دور رس دیکھا جائے تو جس میں تعلیم کے اوپر انیشیٹ لیا جا رہا ہے یہ چیزیں یہ جا کے آگے ایک اچھے اثرات بھی معاشرے پہ ڈال سکتے ہیں لیکن اگر جاری رہے تو. ورنہ جو اس وقت صورتحال ہے کہ پچھلے 70-74 سال کی ناکام ترین حکومت یہ ثابت ہو رہی ہے انتظامی معاملات پہ. انتظامیہ کے اوپر اس وقت گرفت جو ہے وہ صفر پہ آ چکی ہے جس میں سر فہرست مہنگائی ہے اور دوسرے نمبر پہ ظلم و جبر کی داستانیں جو خاص کر سندھ میں رقم ہو رہی ہیں. اب اس کی تھوڑا بہت ہی میں تجزیہ کر سکتا ہوں وقت کی کمی کے لحاظ سے. اب شوگر کا معاملہ چینی جو ہے 100 سے 150 پہ چلی گئی ہے. اب پچھلے دن اگر پچھلے ویلاگز آپ دیکھیں تو آپ کو یہ باتیں سمجھنے میں آسانی رہے گی. پچھلے دنوں جسٹس جواد حسن صاحب نے ایک فیصلہ دیا تھا جس میں مسابقتی کمیشن کی طرف سے شوگر ملز پر جرمانہ عائد کیا گیا تھا اربوں روپے اور وہ جرمانہ جسٹس جواد حسن صاحب نے معطل کر دیا تھا یعنی لیا ہی نہیں گیا. جبکہ اس کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی اس کیس میں کمزوری تھی تو وہ کم از کم جرمانہ عدالت میں جمع ہوتا. کیوں کہ وہ جرم ہو رہا ہے. اس وقت ہر ذی شعور پاکستانی دیکھ رہا ہے کہ شوگر مافیا ذخیرہ اندوزی یا ہر ناجائز طریقے سے منافع کما رہے ہیں. لیکن بات وہ ہے کہ مسابقتی کمیشن نے کچھ کیس میں سکم رکھ کے جرمانہ کیا اور جب وہ شوگر ملز عدالتوں میں گئیں تو عدالتوں نے انہی رکھے گئے سکم کا فائدہ اٹھا کے وہ جرمانہ معطل کر دیا. یہ چیز بالکل ثابت کر رہی ہے کہ یہ جو اشرافیہ ہے جس میں ہمارے معزز جج حضرات ہمارے بیوروکریٹ سرکاری ادارے یہ مل مالکان یہ تمام لوگ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. کسی بھی عام آدمی کو کوئی جرمانہ ہو جائے کوئی چالان ہو جائے کیا عدالت معطل کرتی ہے؟ کسی صورت نہیں. اٹھا کے آپ کو باہر پھینکوا دیں گے. کوئی کمشنر کوئی مجسٹریٹ سڑک پہ آپ کو کوئی جرمانہ کر دے کوئی چیز کر دے آپ اس میں ایک لفظ کا رد و بدل کرنے کی کوشش کریں آپ کو وہیں پر پھینٹی لگ جائے گی بھائی. یہ تو جب سے کوئی کیمرہ سامنے آیا اس کی وجہ سے تھوڑا سا شرما رہے ہیں نہیں کہ یہ لوگ شرماتے نہیں ہیں کسی عام آدمی پر جہاں چاہیں جبر کریں. لیکن اربوں روپے کا شوگر مافیا کا جرمانہ جسٹس صاحب نے اب ان کو بات یہ ہے کہ آپ ان پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے. انہوں نے بالکل قانون پورا کیا ہے لیکن قانون کے ساتھ یہ جو لاکھوں روپے تنخواہ لے رہا ہے مسابقتی کمیشن کے افسران انہوں نے ایسے سکم کیوں رکھے کون پوچھے گا؟ کیونکہ عوام کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. شوگر ملز مالکان ان کے رشتہ دار ہی ججز ہیں ان کے رشتہ دار ہی وکیل ہیں ان کے رشتہ دار ہی بیوروکریٹ ہیں ان کے رشتہ دار ہی وزیر ہیں. یہ تمام ایک ہی قوم ہے وہ صرف عہدے اور شکلیں مختلف ہیں اور اس میں
इस वक्त जो पेट्रोल की महंगाई है वो तो एक आलमी मामला है, लेकिन घी, चीनी और आटा ये सरासर, और इसमें 75% यही जो पीडीएम है इनके लोग हैं, इनकी शुगर मिले हैं, इनकी आटा मिले हैं, घी के कारोबार पे ये लोग काबिज हैं। इमरान खान बजाते खुद शरीफ आदमी है, करप्ट नहीं है, लेकिन इसके इर्द गिर्द मुशीरान, इसकी जो काबीना है उसमें लोग, एमएनएज, एमपीएज, ये तमाम लोग आपस में रिश्तेदार हैं। और मज़े की बात, चाहे इमरान खान वज़ीर आज़म हो, चाहे बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म हो, चाहे शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हो, चाहे कोई और आफत वज़ीर आज़म बन जाए, ये एमएनए एमपीएज यही लोग होंगे। आप लोग कुछ नहीं कर सकते, आम आवाम कुछ नहीं कर सकते। इस वक्त महंगाई के इस दौर में 15 से 18 हज़ार तनख्वाह लेने वाला आम आदमी अपनी जेब से पैसे दे के पेट्रोल ले रहा है, अपनी जेब से पैसे देकर आटा, घी, चीनी ले रहा है। लेकिन ये ब्यूरोक्रेट और आला अदलिया के जजेस जो 12 से 15, 15 से 18 लाख, 18 लाख से 22 लाख तक तनख्वाहें, मुफ्त पेट्रोल और किचन के यूटिलिटी बिल्स अनलिमिटेड, यानी कि घी, चीनी, आटा मुफ्त। क्या ये इस मुल्क के ऊपर जबर का निजाम नहीं है? और इसमें वो ठीक है भाई, आप ये सारी सहूलतें लें, हमारे आला तरीन जो जजेस हैं वो 15-18 लाख तनख्वाहें भी लें, महल नुमा घर भी लें, 5 लाख वाले टीवी भी सरकारी खर्चे पे लें। यार कोई अवाम के लिए कुछ एफर्ट तो करें। ये चीनी के मामले में जो जुर्माना हुआ था वो अगर सही तरीके से नहीं हुआ, कम से कम जुर्माना तरीका सीधा करवाने की मोहलत देके जुर्माना तो अपने पास जमा कर लेते। कम से कम ये जो 100 से 150 पे चीनी चली गई ये तो रुक जाती। बहरहाल हमारा काम था तज्जिया करना। आगे अब दूसरा मामला जुल्म और जबर का है। अब कुछ अरसा कबल लॉन्ग मार्च किया था बिलावल साहब ने। उस लॉन्ग मार्च में एक सहाफ़ी ने उसकी एक स्टोरी ब्रेक की थी, जिसमें उस ट्रेन में बहुत से डब्बों में ऐसे कुछ मर्द और ख़वातीन को बिठाया गया था जो हर स्टेशन पे उतर के बिलावल साहब का इस्तकबाल कर रही थी, और जिसमें फिर वो मीडिया दिखा रहा था कि बिलावल साहब की हर शहर में किस तरह इस्तकबाल हो रहा है। अब वो सिंधी सहाफ़ी बेचारा मजलूम, इस स्टोरी ब्रेक करने के बाद उसने बताया उसको धमकियां मिल रही हैं, उसको मार दिया जाएगा, और फिर उसको मार दिया गया। फिर कुछ अर्सा गुजरा, वो खबर भी दब गई, फिर वो मामला ही रफा दफा हो गया। अब ये तसलसल है। उसके बाद ये अभी 4 दिन पहले एक नौजवान नाज़िम जोखियो, सिंध का बेटा, सिंध का एक आम सहाफ़ी, जिस बेदर्दी और जुल्म के साथ उसको कत्ल किया, और कत्ल करने वाला जाम अवैस, पीपल्स पार्टी का रुकन, उसका भाई एमपीए। ये पीपल्स पार्टी शहीदों की पार्टी अब इन कातलों की पार्टी बन गई। उस नाज़िम जोखियों पर जो जुल्म बर्बरियत हुई, उसने जो जाम अवैस था उसके कुछ अरब शहजादों से दोस्ती थी, और उनके साथ मिलके एक गैर कानूनी शिकार वो कर रहे थे, जिसकी उसने वीडियो बनाई या कवरेज की, जो सहाफ़ी का काम है, सहाफ़ी की पेशेवराना जिम्मेदारी है। उस पे वो गैर कानूनी शिकार की वीडियो मौजूद है। उसके बाद जो उसको फ़ोन पे धमकियां दी गई पीपल्स पार्टी के इन लोगों की तरफ से, इन वडेरों की तरफ से, वो उनके सबूत मौजूद हैं। जो उनको वो उसके डेरे पे लेके गए उसके सबूत मौजूद हैं। ठीक है, और अब ये मामला देखते हैं कि महीना लेता है या 2 महीने लेता है, या बहुत ज़्यादा हो गया तो 3 महीने लेगा दबने में। लेकिन ये जुल्म, क्योंकि अब ये वडेरे और ये पीपल्स पार्टी जो है वो अब ये वो पार्टी नहीं रही। ये तो क्योंकि इन्होंने ऐसे इंतजामात पीपल्स पार्टी ने कर लिए हैं, जली वोटर लिस्टों के साथ एक ऐसा मैनेजमेंट इन्होंने बनाई है अंदरूने सिंध में कि ये किसी तरीके से भी हार नहीं सकते। इनके बैलेट बॉक्स इनके वोटों के साथ भरे ही मिलेंगे,
क्यों कि इलेक्शन कमीशन को जो अमला दरकार होता है सरकारी, वो सब इन्होंने अपने मज़ारे तक भर्ती कराए हुए हैं, जिसमें चाहे हेड मास्टर हों, चाहे मास्टर हों, चाहे जिस तरह का भी सरकारी अमला है वो इनके मज़ारे हैं। और जाली वोटर लिस्टें इलेक्शन कमीशन तक माना हुआ है कि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ के आबादी के जो मर्दमशुमारी की के तनासुब है उससे वोटर्स की तादाद कहीं ज़्यादा है। उसके बाद जो ये जाम अवैस वडेरा है, अब वडेरों के मुतालिक इनका एक 16 अक्टूबर की एक समा टीवी की खबर है। इनकी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन है शमीम मुमताज़। उनके इलाके में एक केस हुआ कि एक स्कूल की तालबात, 9वीं 10वीं की तालबात होंगी, उनके ऊपर जो जबर हुआ, उनके साथ जो जिनसी ज़्यादती हुई, उसके बाद वीडियोस बनी और वो जो मामला पुलिस तक गया तो ये चेयरपर्सन साहिबा गई जी, वो क्योंकि वडेरे ने दखल दे के जी सुलह के लिए उनको बुला लिया, तो वो कहती हैं कि ये अदालतों से इंसाफ नहीं मिल सकता, वडेरा जो है वो बाप होता है। ये उसके अल्फाज हैं, मेरे नहीं। ये जो एमपीए है शमीम मुमताज़, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की एमपीए है, और जो जबर उन बच्चियों के साथ हुआ, ये कह रही है कि वडेरा जो है ये अवाम का बाप है। यार इन लोगों को जरा शर्म नहीं है। ये औरत है, खुद भी औरत है, बच्चियों के साथ ऐसी ज्यादती हुई है, और ये पीपल्स पार्टी की ये तस्वीर है। ये वडेरे को बाप कह रही है। वो जाम अवैस जिसने नाज़िम जोखियों को मारा, उसकी छोटी सी बच्ची उसके बगैर सोती नहीं है। अब मैं कौन से अल्फाज में सोच के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि एक मोतबर जगह पे बैठा हूँ, कोई गलत लफ्ज ना निकले, इनके लिए अल्फाज कहाँ से लाऊं कि वो उसके आप उसकी स्टोरी सुने, उसकी मासूम बच्ची उसके बगैर सोती नहीं है। और ये शमीम मुमताज़, इनको किस तरह मैं बोलूं कि इनको मुहतरमा को, खातून है, इनको शर्म आनी चाहिए। और ये इस तरह की पीपल्स पार्टी ये बेनज़ीर की या भुट्टो की नहीं है, ये तो कोई बहुत ही कबीह किस्म की कोई दरिंदा सिफ्त पार्टी बन गई है, माजरत के साथ। ये पार्टी, ये अयान अली केस से देख लें, एक रंगे हाथों पकड़ा गया और उसमें उसके कई गवाहान कत्ल हो चुके हैं। और जरदारी साहब के 10-15 साल का रिकॉर्ड देखें, केसों की असली फाइलें अदालतों से गायब हो चुकी हैं, ताकि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं हमारे पास, हमारे खिलाफ कुछ साबित कर दें। कोई साबित नहीं कर सकता। बहरहाल एक चीज़ है जो हमें कायम रखे हुए है, वो हमारा मज़हब। वो कहता है कि मायूसी गुनाह। उसी बुनियाद पे मैं बात करता रहूँगा। और मेरे वो भाई जो पीपल्स पार्टी के वोटर्स हैं या सपोर्टर्स हैं, या नून लीग के वोटर्स या सपोर्टर्स हैं, पीटीआई के वोटर्स या सपोर्टर्स हैं, वो ज़रा होश के नाखुन लें, इन मामलात पे बात करें, इन मामलात की डिमांड करें, क्योंकि आपके सियासतदानों ने ना जजेस का ये रोल जो है उसको छेड़ना है, ना ब्यूरोक्रेसी के इस रोल को छेड़ना है, क्योंकि इन्हीं सियासतदानों के रिश्तेदार जो हैं वो अदालतों में भी जज बन के बैठे हैं, ब्यूरोक्रेसी में सेक्रेटरीज बन के बैठे हैं, खुद ये लोग मिनिस्टर सब आपस में रिश्तेदार हैं। जबकि ये आम वर्कर, चाहे पीपल्स पार्टी का है, चाहे नून लीग का है, चाहे पीटीआई का है, जब तक ये आवाज़ नहीं उठाएगा, वज़ीर आज़म किसी को भी बना दें, नीचे यही प्यादे हैं, इलेक्टेबल्स। अस्सलाम वालेकुम।